to give me this opportunity to share my thoughts. And the concept which Asha ji just said is actually very good to create a basis for every person, every tax practitioner to enter into GST. And secondly, I always say litigation, the provisions may start from section 74, 74A for the year in progress or 65, 66. But until and unless we know the basics, it would be very difficult for us to defend the cases. Even today, I feel most of the cases I am able to get out is just because of the basic knowledge and not because of the tricky knowledge of section 73 and 74. As a practitioner, we also need to understand that our first conflict would be with the adjudicating officer. जो हमारा first interface होगा, वो adjudicating officer या GST audit team के साथ होगा. And those officers are not here to interpret the law. Those officers are here to enforce the law. So they will not take any jurisprudence or they will not take any viewpoint which is not foreseeable or which is not black and white, which is not crystal clear. So in all those situations, and you have to understand, if even if you would have been in their situation, you would have taken those calls only because they are not there to interpret the law. Interpretation starts from tribunal and higher stages. So with these words, I would be starting my today's topic, which is registration and reverse charge. So I would be first taking up the registration, oh sorry, RCM, and then move on to the registration part because I think it is more important to understand RCM. And registration is more or less a streamlined topic now. So because the time is limited and we have two topics to cover, starting with RCM, I have divided the entire agenda into two broad categories. In the first part of our discussion, we would be focusing more on the technical aspect. यानी first part में हम जो legal provisions है उसको समझने की कोशिश करेंगे. And in the second phase of our discussion, we will move on to specific services for which or specific goods for which we should be seeing how the provision is actually applying. RCM कैसे अप्लाई हो रहा है. तो हम दो कैटेगरीज में वी आर डिवाइडिंग दिस. तो स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट पार्ट, just one basic provisions. So the term reverse charge is defined in the law. So it says that the liability to pay tax by the recipient of supply of goods or services or both instead of the supplier of such goods or services or both under 93 or 94 of the GST Act. So if you carefully read this definition, you will see that it is not a new charge. It is not a new liability which is created. It just states that a liability which has already been enforced under the levy section, section 9 of the CGST Act, यानी जो section 9(1) में जिस पे चार्ज लग गया है, जब आप section 9(1) को ध्यान से पढ़ते हो वो चार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है सप्लायर के ऊपर. सो अंडर रिवर्स चार्ज द ओनली थिंग दैट इज शिफ्टिंग इज कि सप्लायर की जगह रेसिपिएंट को पे करना है. दैट्स इट. See the first line, the liability to pay tax by the recipient. That is the only thing. और आप थर्ड बुलेट पढ़ेंगे instead of the supplier. So there is no fresh liability which is created under RCM. It is specifically and clearly change of the person who is responsible to pay the taxes. सो यहाँ पे जितने भी प्रोविजन एक सप्लायर के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, सिमिलर प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं रेसिपिएंट के टू डिस्चार्ज दैट टैक्स लायबिलिटी. एंड व्हाइल डिस्चार्जिंग दैट टैक्स लायबिलिटी he has to think if the supplier would have paid done a particular thing. उसने अगर CORS लगाया होता तो मुझे भी CORS लगाना, उसने आई लगाया था तो मुझे भी आई लगाना. तो I just have to step into the shoes of the recipient and see what he would have done. उसका वाइसा वर्सा एज रेसिपिएंट मुझे करना है. तो इट बिकम्स वेरी सिंपल इफ वी जस्ट थिंक कि मुझे करना क्या है. सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द सप्लायर. सो एज्यूमिंग I am providing certain services on which reverse charge is applicable. I am the supplier. Recipient is liable to pay the taxes. मैं supplier हूँ, recipient को tax pay करना है. But I am also registered under GST. और मैं भी GST में registered हूँ. उस situation के अंदर एज अ सप्लायर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो बिकॉज आई एम रजिस्टर्ड मुझे GST इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है. मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में भी ये वैल्यू इंक्लूड होगी ही होगी एक्सेप्ट जहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ RCM सप्लाई कर रहा हूँ. इफ आई एम डूइंग सम टैक्सेबल सप्लाई, आई एम डूइंग एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर
इंक्लूड होगी और रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेबिलिटी मुझे देखनी है। बट इफ आई एम प्योरली डीलिंग इनटू सप्लाईज कवर्ड अंडर आरसीएम, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन की एग्जेम्पशन है बाय वर्च्यू ऑफ 5/2017। थर्ड इज, एज अ सप्लायर इफ आई एम डूइंग एनी सप्लाईज जिस पे रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है, तो वो मेरी एग्जेम्प्ट सप्लाई मानी जाती है फॉर द पर्पसेस ऑफ रूल 42, रूल 43। यानी फॉर एग्जांपल मैं एक जीटीए हूँ और मैं वेयर हाउस की सर्विसेज भी देता हूँ। वेयर हाउस की सर्विसेज टैक्सेबल है, जीटीए की सर्विसेज आरसीएम पे सामने वाला पे कर रहा है। इस सिचुएशन में मैंने ऑडिट कराया, ऑडिट ने दोनों बिजनेसेस का ऑडिट किया जो सीए थे। सो वो जो सीए का जीएसटी है वो मैं 100% क्लेम नहीं कर सकता, मुझे प्रो राटा क्रेडिट मिलेगा। सो आई हैव टू आइडेंटिफाई कॉमन क्रेडिट्स, credits which are used both for GTA services and warehousing services, that is both for exempt supply as well as taxable supply, उसको मुझे प्रोराटा बेसिस के ऊपर क्रेडिट मिला करेगा, दैट इज रूल 42, रूल 43। तो जब जब सामने वाला आरसीएम पे कर रहा है, मेरी ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ रूल 42, 43 वो एग्जेम्प्ट सप्लाई ट्रीट होगी, प्रोराटा रिवर्सल मुझे कैलकुलेट करना है। क्योंकि मैंने इनवॉइस इशू किया है एज आई एम रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ, सो उसकी रिपोर्टिंग 3B में भी होगी, 1 में भी होगी, 9, 9C जहां पे भी एप्लीकेबल है वो रिपोर्टिंग मेरी होंगी, जस्ट लाइक अ नॉर्मल सप्लाई। उसके कॉलम्स अलग होंगे, टैब्स अलग होंगे, बट वो रिपोर्ट हर जगह पे होगा। सो इफ वी से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड चार्ज वर्सेस रिवर्स चार्ज, सो almost for everything, valuation, classification and place of supply, the provisions are same। अगर मुझे किसी की वैल्यू करनी है किसी रिवर्स चार्ज की, तो जो नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज के प्रोविजन होते हैं यानी सेक्शन 15 रेड विद रूल्स, वही सेम यहाँ पे अप्लाई होंगे। क्लासिफिकेशन विल रिमेन सेम, प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन विल रिमेन सेम, यानी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, यहाँ पे भी बहुत मटेरियल डिफरेंस नहीं आता, देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, वो आता है टाइम ऑफ सप्लाई और आईटीसी को लेके। टाइम ऑफ सप्लाई मीन्स द लायबिलिटी व्हेन आई एम रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज दी टैक्स लाइबिलिटी, जो रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना है वो कब डिस्चार्ज करना है, तो वहां पे थोड़ा सा चेंज आता है। और आईटीसी में भी थोड़ा सा चेंज है, 90% कॉन्सेप्ट आईटीसी का भी सेम है, जैसे फॉरवर्ड चार्ज के क्रेडिट्स है वैसे ही आईटीसी के क्रेडिट्स है, बस उसमें एक या दो जगह पे थोड़ा सा चेंज आएगा विच वी विल डिस्कस ड्यूरिंग दी मतलब इलाबोरेशन। तो पहले हम देखते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई में क्या चेंज आएगा। अगेन आपका इसका स्पेसिफिक टॉपिक है तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। सो गुड्स के लिए मेरा होता है जिस दिन गुड्स रिसीव हो गए या मैंने पेमेंट कर दी या 30 days फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सो इफ यू आर परचेजिंग एनी गुड्स विच आर लाइबल टू रिवर्स चार्ज, तो आपने वो देखना है आपने रिसीव कब किया, पेमेंट कब किया, 30 days कब हुए, जो तीनों में अर्लीस्ट है उस पे आपको टैक्स पे करना है। Similarly, for services, it is date of payment, 60 days from the date of issue of invoice by the supplier. In this case, the supplier will be registered। और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट, यानी जो आप खुद इनवॉइस इशू करेंगे, सेल्फ इनवॉइस इशू करेंगे, इफ द सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, उस केस में आपका अर्लीस्ट हो जाएगा। अगर आपकी डेट असरटेन नहीं हो पा रही, तो जिस दिन आप बुक्स में डाल देंगे दैट डेट विल बी असरटेन assumed as the date for time of supply। और अगर कोई एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हैं, तो पेमेंट और बुक्स में जिस दिन एंट्री हो रही है, आई एम रीडिंग द नोट बिलो, इन केस ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज वेयर सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। यानी आपकी ही रिलेटेड पार्टी इंडिया के बाहर बैठी है, तो जिस दिन आप बुक्स में एंट्री करेंगे और द डेट ऑन विच यू मेक द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। So very simple. As of now, what we have discussed is that there is no fresh levy under GS, under RC। It is only changing the tax person who is responsible to pay। टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर बहुत चेंज नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ आपको ऑलमोस्ट 30 days का ग्रेस मिल जाता है अगर गुड्स और पेमेंट्स आपकी बाद में आ रही हैं। अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम टाइम के ऊपर यू हैव टू डिस्चार्ज दी आरसीएम लाइबिलिटी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल क्रेडिट and an RCM credit comes from section 16 subsection 4। section 16(4) limits the time to avail the credit। वो कैपिंग लगा देता है कि इस पर्टिकुलर डेट के बाद क्रेडिट नहीं लेना। फॉर एग्जांपल 24-25 का क्रेडिट कब तक ले सकते थे, 30th of November 2025। 30 नवंबर के बाद मैं 30th
24-25 का क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा। 30 नवंबर को भी बोले तो अक्टूबर की रिटर्न जो नवंबर में जा रही थी हम उसकी बात कर रहे हैं। और अगर क्वार्टरली डीलर है तो सितंबर की रिटर्न जो अक्टूबर में जा रही थी, क्योंकि क्रेडिट क्लेम करने का एक ही फॉर्म होता है, दैट इज जीएसटीआर प्रीबी नॉर्मल सिचुएशन के अंदर। सो आई एम नाउ रीडिंग द प्रोविजन word by word. A registered person shall not be entitled to take ITC in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September following the, ये सितंबर की जगह अब हमारा नवंबर की डेट आ चुकी है। सो नाउ इफ यू रीड, यहाँ पे जो ब्लू हाईलाइटेड है, इट सेज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट। सो Section 16 for restrict only credit relating to an invoice or debit note. रूल 36 सब रूल 1 में जब हम जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं जिसके बेसिस पे मैं क्रेडिट ले सकता हूँ। तो वहां पे इनवॉइस भी लिखा है, वहां पे डेबिट नोट भी लिखा है, वहां पे बिल ऑफ एंट्री भी लिखी है, और वहां पे रूल 36(1)(b) का लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ आरसीएम यू हैव टू क्रिएट अ सेल्फ इनवॉइस। तो अब यहाँ पे दो कैटेगरीज हो गई। एक है इफ यू आर परचेजिंग सर्विसेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड यू आर परचेजिंग सर्विसेज फ्रॉम ए रजिस्टर्ड पर्सन जिसपे आरसीएम है। यानी जीटीए की सर्विसेज ले रहे हो, एक जीटीए रजिस्टर्ड है, एक जीटीए अनरजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है तो उसने इनवॉइस इशू करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो गई। अगर अनरजिस्टर्ड है तो इनवॉइस आप इशू कर रहे हो, उसकी आपके बेसिस पे यू हैव टू। नाउ कम्स द लास्ट डेट ऑफ क्लेमिंग द क्रेडिट। सो जो सेकेंड पर्सन है अनरजिस्टर्ड वाला है, अनरजिस्टर्ड वाला तो कैटेगोरिकली इसमें कवर हो गया कि वो इनवॉइस तो है ही नहीं, वो सेल्फ इनवॉइस है। क्योंकि वो सेल्फ इनवॉइस है तो वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में कवर नहीं होता। रजिस्टर्ड पर्सन का इनवॉइस इशू हो रखा है तो शायद वो 16(4) की टाइम लिमिट में आ रहा हो। लेकिन अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं सेल्फ इनवॉइस और पेमेंट वाउचर को स्किप कर रहा हूँ। सर्कुलर नंबर 211 आया। सर्कुलर 211 के अंदर उसने कैटेगोरिकली बोला कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाईज ले रहे हो और आपको आरसीएम पे करना है, यू आर परचेजिंग सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन और उसके ऊपर आपको आरसीएम डिस्चार्ज करना है, देन द लास्ट डेट टू क्लेम द क्रेडिट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय 16(4). तो उसने बोला 16(4) नहीं लगेगा। आपको जो जिस दिन आपने टैक्स पे किया उस दिन के बेसिस पे यू वुड बी एलिजिबल टू क्लेम द क्रेडिट एंड नॉट बिफोर दैट। उसके लिए उन्होंने पूरा सर्कुलर 211 के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया। यानी आज आप एनुअल रिटर्न भी भर रहे हो या किसी साल के केस की भी असेसमेंट हो रही है, सो वट एवर टैक्सेस यू विल पे टूडे विल बी एलिजिबल। सिर्फ कंडीशन क्या लगा दी लॉ ने कि इट इज अनरजिस्टर्ड। तो अनरजिस्टर्ड में आरसीएम कभी भी लैप्स नहीं होता, वो हमेशा क्रेडिटेबल रहेगा। अब दो चीजें आ गई कि उसके इंटरेस्ट का क्या होगा, पेनल्टी का क्या होगा। सर इंटरेस्ट और पेनल्टी आप दोनों को, आपको इन दोनों चीजों को लिटिगेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 1 लेते हैं। मेरा 3B में टोटल टैक्स था 1 करोड़ रुपए जो मैंने कैश से पे कर रखा है एंड आरसीएम वाज ओनली 5 लाख रुपीज। यानी अगर मेरे को ये गलती नहीं करता तो आई वुड हैव शोन आरसीएम लाइबिलिटी 5 लाख रुपीज। आई वुड हैव टेकन द क्रेडिट ऑफ आरसीएम लाइबिलिटी 5 लाख रुपीज। और 1 करोड़ रुपए का जो मैंने टैक्स पे कर रखा है उसमें से 95 चला जाता पहले नॉर्मल लाइबिलिटी के लिए, 5 लाख चला जाता आरसीएम के लिए, और 5 लाख का आरसीएम जो पे किया था वो नॉर्मल लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट हो जाता। यानी टेक्निकली अगर मैं रिवाइज रिटर्न फाइल करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो बिना अपनी जेब से 1 रुपया डाले भी मैं उस रिटर्न को रिवाइज कर जाता और ये शो कर पाता कि सर मैंने अपना पूरा टैक्स डिस्चार्ज कर दिया है। यानी I can fight and dispute interest liability if my tax liability in cash is much more than आरसीएम liability। यानी अगर आपने कैश में ज्यादा पे कर रखा है तो आप उसमें फाइट कर सकते हो, और जहां पे आप इंटरेस्ट के लिए फाइट कर रहे हो वहां तो ऑटोमेटिकली पेनल्टीज के लिए यू वुड बी इजीली फाइटिंग। लेकिन अगर आपकी पेनल्टी आपके पास इतना नहीं था तो आपको ये केस फाइट करना पड़ेगा, तो शायद इंटरेस्ट आपको एप्लीकेबल हो जाए, बट पेनल्टी के लिए फिर भी आप फाइट कर सकते हो ऑन द बेसिस कि मुझे क्रेडिट मिलना था। हाँ, अब जिस केस में फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल है, स्कूल है, जिसको क्रेडिट ही नहीं मिलता क्योंकि वो एग्जाम सप्लाईज करते हैं, वो इशू आपको डिफरेंट टेंजेंट पे देखने पड़ेंगे, मटेरियलिटी पे देखना पड़ेगा।
लेकिन रूटीन में जहां पे आरसीएम का क्रेडिट अवेलेबल है, यू कैन ऑलवेज से कि सर अगर मुझे क्रेडिट अवेलेबल ही था तो ना पे करके मैंने अपने आप को क्या एडवांटेज दे दी? कोई एडवांटेज नहीं दिया, तो पेनल्टी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, टैक्स शायद बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है, लेकिन पेनल्टी मेरे को 73 या लोअर पेनल्टी मेरे को 10% पे रिस्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। सो ये हो गया सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की लास्ट डेट पे आरसीएम के क्रेडिट का क्या स्टेटस रहेगा। यहाँ पे सर्कुलर 211 ने क्या किया है, आपके रेसिपिएंट को डिवाइड कर दिया रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड पे तो बोला कि क्रेडिट की कोई टाइम बारिंग नहीं है, वो अनलिमिटेड पीरियड तक आप क्लेम कर सकते हो, मतलब जब आप पे करोगे उसके बेसिस पे यू कैन क्लेम। बट रजिस्टर्ड पर्सन के लिए क्या सिचुएशन है, तो एज पर जीएसटी ऑफिसर दे से, क्योंकि वहां पे टैक्स इनवॉइस इशू कर रखा है सप्लायर ने, सेक्शन 16(4) एप्लीकेबल होता है। क्योंकि सेक्शन 16(4) एप्लीकेबल है, तो आपकी लास्ट डेट ऑलरेडी निकल चुकी है। बट मेरा मानना ये है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी वो बोलता है जब तक आप टैक्स की पेमेंट नहीं करोगे आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो। ठीक है, सप्लायर ने इनवॉइस काटा था, मैंने उसका आरसीएम पे नहीं करा, मेरे टू बी में भी नजर आ रहा था, मैंने पे नहीं करा। बट मैंने उसका टैक्स भी पे नहीं करा। जब मैंने टैक्स भी पे नहीं किया, इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो क्रेडिट था उसको कभी लाइफ ही नहीं मिली, उसको कभी लाइफ ही नहीं मिली। एंड वी आर सेइंग कि उसकी डेथ हो चुकी है। मैं उसकी टैक्स पेमेंट कर रहा हूँ आज 2025 में, और एज्यूम करते हैं वो 22-23 का क्रेडिट था, तो लॉ कह रहा है कि वो 30 नवंबर 2023 को उसकी एक्सपायरी हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ एक्सपायरी 30 नवंबर 2023 में कैसे हो जाएगी, जब उसका जन्म, उसका बर्थ ही मैं नवंबर या दिसंबर 2025 में कर रहा हूँ, जब मैं उसकी टैक्स की पेमेंट कर रहा हूँ। अगेन वो लिटिगेशन का इशू रहेगा, बट इट इज नॉट कि आपको वो रिवर्स ही करना पड़ेगा या क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। अपने केस को देखिए, डिवाइड करिए, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू क्लेम द क्रेडिट। नेक्स्ट इज सप्लाई स्पेसिफिक इम्प्लीकेशन। अब हम एक एक ट्रांजैक्शन, हम सारी जो ट्रांजैक्शन है उनको तो कवर नहीं करेंगे, बट जिन ट्रांजैक्शंस को लेके आएंगे उनको अच्छे से इवेलुएट करने की कोशिश करेंगे, बट हाउ द आरसीएम प्रोविजन एक्चुअली अप्लाई। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट, सेक्शन 9(3) एंड सेक्शन 9(4) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट आर द बेसिक प्रोविजन। 9(3) बोलता है कि हम बता देंगे किस कैटेगरी ऑफ सप्लाई के ऊपर आपको आरसीएम लगेगा, यानी सप्लायर कौन होगा, रेसिपिएंट कौन होगा, सप्लाई क्या होगी, तीन चीजें, सप्लायर, रेसिपिएंट और सप्लाई। ये तीन चीजें क्या होंगी, तो आप 9(3) में पे करना पड़ेगा। 9(4) में उसने बोला कि सारे रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं, हम आइडेंटिफाई करेंगे एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को जो अनरजिस्टर्ड से खरीद रहे हैं। 9(3) में वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है सप्लायर, अनरजिस्टर्ड भी। 9(4) के अंदर कंडीशन क्या है, पहले तो रेसिपिएंट स्पेसिफाइड कैटेगरी हो गई, रिसीव कर रहा है अनरजिस्टर्ड से, और परचेज भी एक स्पेसिफाइड कैटेगरी की होगी। स्पेसिफाइड कैटेगरी का मतलब यह है कि अगर मैं मोबाइल कर रहा हूं तो मोबाइल में भी मैं कहीं पे कुछ रिस्ट्रिक्शन कार्व आउट करने की पॉसिबिलिटी रखता हूँ। सेक्शन 9(4) आज की डेट में सिर्फ रियल एस्टेट के ऊपर एप्लीकेबल है। तो रियल एस्टेट में उनका है कि आपको मिनिमम 85% तो रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करना ही करना है। सो वो वहां पे उन्होंने बोला कि अगर एक रियल एस्टेट डेवलपर है तो उसको 85% मिनिमम रजिस्टर्ड से करना है, 15% वो अनरजिस्टर्ड से भी कर सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक स्पेसिफिक कैटेगरी क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन को उठाया कि आप अगर अनरजिस्टर्ड से कर रहे हो तो आपको आरसीएम डिस्चार्ज करना। नाउ नोटिफिकेशन, कि ये जो 9(3) में नोटिफिकेशन आई है इनको कैसे पढ़े। सर माय एडवाइस बिफोर द हाउसेस, तीन चीजों के लिए, जब जब आप रेट ऑफ टैक्स की बात करते हैं, जब जब आप एग्जेम्पशंस की बात करते हैं, जब जब आप रिवर्स चार्ज की बात करते हैं, एंड वो इंटर स्टेट है, यानी उसमें इंटरस्टेट होने की पॉसिबिलिटी है, इट इज ऑलवेज एडवाइस कि आप आईजीएसटी की नोटिफिकेशन खोलो। बिकॉज अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन्स की बात करोगे वो सीजीएसटी नोटिफिकेशन में आती ही नहीं है, वो आती ही आईजीएसटी नोटिफिकेशन में। सो वेन एवर देर इज एन इशू रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, और यू फील इट इज एन इंटर स्टेट सप्लाई, it is better to refer IGST notification than not the CGST notification.
So here also we have taken the base of notification 10/2017 as amended for services. So यहाँ पे सर टोटल 24 सर्विसेज उन्होंने नोटिफाई कर रखी हैं। 24 को अगर हम डिवाइड करें तो दो ब्रॉड कैटेगरीज में हो जाती है। द फर्स्ट कैटेगरी इज सेक्टर स्पेसिफिक, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड सेबी, जिसमें 7 कैटेगरीज आती हैं। रियल एस्टेट में 2 आती हैं, आर्टिस्ट और ऑथर्स में 2 आती है। सो रूटीन केसेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो 11 सर्विसेज हैं ये शायद आपके केस में लग ही नहीं रही हो। तो 24 - 11, यानी आपके केस में मैक्सिमम कितनी लग रही होंगी? 13। तो पहले तो वो जो लिस्ट या नोटिफिकेशन इतनी बड़ी नजर आती है, वो नोटिफिकेशन इतनी बड़ी नहीं है। इसमें मैंने वो स्पेसिफिक सीरियल नंबर में लिख रखे हैं 10/2017 के, कि मैंने कहाँ पे उनकी काउंटिंग करी है। अब जो 13 बची, उन 13 में से भी आप देखोगे तो एक स्क्वायर के ऊपर जनरली 6 to 7 के बाद कुछ नहीं लग रहा होता। अब वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सो अगर कोई इंडियन टैक्स पेयर इंडिया के बाहर से कोई भी सर्विसेज लेता है तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में क्वालिफाई होता है और उसको आरसीएम पे करना होता है। जीटीए सर्विसेज पे उसको आरसीएम पे करना है, एडवोकेट के ऊपर उसको आरसीएम पे करना है, डायरेक्टर की सर्विसेज पे आरसीएम पे करना है, इंपोर्ट फ्रेट के ऊपर उसको पे करना है। ये ओमिट हो गया, सीरियल नंबर 10 का ओमिशन हो गया। तो 24 में से आपकी एक और माइनस हो गई 23, 13 में से माइनस हो गई 12। लेकिन मैं हमेशा इंपोर्ट को यहाँ पे लेके चलता हूं, इसलिए क्योंकि जो मोहित मिनरल, जो सुप्रीम कोर्ट की सेलिब्रेटेड जजमेंट आई थी कि आपको सीआईएफ इंपोर्ट्स के ऊपर आरसीएम पे नहीं करना, वहां पे मैं हमेशा एक चीज सबको बोलता हूँ कि सर वो नोटिफिकेशन के फैक्ट्स बहुत डिस्टिंग्विश्ड है। आप यूएसए से माल मंगा रहे हो, आपने यूएसए के सप्लायर को बोला कि आप ऑल इंक्लूसिव मुझे बता दो रेट, और इंडिया के गुजरात पोर्ट पे भिजवा दो, या महाराष्ट्र मुंबई पोर्ट पे भिजवा दो, या चेन्नई पोर्ट पे भिजवा दो। आपने रेट ले लिया, जिसमें उसने ट्रांसपोर्टेशन भी इनबिल्ट करके आपको रेट दे दिया। दूसरी सिचुएशन है, आपने बोला आप माल अपनी फैक्ट्री के बाहर रख देना, मैं अपना ट्रांसपोर्टर भेजूंगा, अपनी शिपिंग लाइन भेजूंगा, वो आपके वहां से माल लेके मेरे को दे देगी। अब यहाँ पे दो सेपरेट ट्रांजैक्शंस है। पहली ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ गुड्स, दूसरी ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ सर्विसेज इन द नेचर ऑफ फ्रेट। और जो दूसरी सर्विस है वो सीरियल नंबर 1 इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में भी कवर हो सकती है। इसीलिए मैं इंपोर्ट फ्रेट को कभी भी हटाता नहीं हूं कि आप इसको ये मत सोचो। सुप्रीम कोर्ट की ये ओमिट होने के बाद भी सीरियल नंबर 1 एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें नॉर्मल इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कवर होती है। तो वन शुड बी वेरी क्लियर एंड मतलब आई वुड से बहुत उसको कैटेगोरिकली स्पिन ऑफ कर ले कि क्या मेरे केस में एप्लीकेबल है या नहीं है। मूविंग है, उसके बाद ये 5 सर्विसेज या 4 सर्विसेज, इंपोर्ट, जीटीए, एडवोकेट, डायरेक्टर, ये बहुत कॉमन होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 है ये शायद लग रही हो शायद ना लग रही हो। ट्राइब्यूनल सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप, गवर्नमेंट, सिक्योरिटी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। उसके बाद जो एक है जो ऑलमोस्ट हर केस में अब लगती है, दैट इज रेंटिंग। क्यों? क्योंकि अब अगर आपकी किताबों में रेंट आ रहा है, या तो उस पर फॉरवर्ड चार्ज लगा होगा, अगर फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगा है तो आपको रिवर्स चार्ज में वो पे करना ही करना है। तो ये टोटल 24 सर्विसेज हैं, जिसमें से आज लाइव सिर्फ 23 है। तो ये 23 सर्विसेज को पढ़ने का भी 11/12 का रूल है। 12 सर्विसेज अगर आप पकड़ के चलेंगे तो आई थिंक आप अपने क्लाइंट को एज अ प्रोफेशनल यू वुड बी ऑन अ बेटर स्टैंडिंग। सो नाउ हाउ टू इंटरप्रेट दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। तो जब आप ये नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से देखते हो तो वो 3 पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड करता है कि सप्लाई क्या होगी। तो सबसे पहले मुझे ये टेस्ट करना है कि एग्जैक्टली exactly वहां पे क्या सप्लाई लिखी है, एंड जिस केस के लिए मैं इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ वहां पे क्या सप्लाई हो रही है। सेकेंडली, सप्लायर की क्या कैटेगरी है। थर्डली, रेसिपिएंट की क्या कैटेगरी है। जब तक मैं सप्लायर और रेसिपिएंट तीनों को टेस्ट नहीं कर लूंगा, आई शुड नॉट रन इनटू कंक्लूडिंग कि भैया आरसीएम इज पेबल। आई शुड डिस्टिंग्विश, आई शुड आइडेंटिफाई ईच एंड एवरीथिंग, एंड वन सेटिस्फाइड ओनली देन आई विल से दैट आरसीएम इज पेबल। तो सबसे पहले आ गया, एंड देयर कुड बी सम एडिशनल कंडीशन, इसके बाद भी उन्होंने कोई एडिशनल कंडीशन लगा रखी है तो वो भी मुझे अपने केस में देख के चलनी है। सो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सबसे पहले सीरियल नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सो इट सेज दैट एनी सर्विस
तो सप्लाई है एनी सर्विस। तो अगर आप कोई भी सर्विसेज प्रोक्योर कर रहे हो वेयर द सप्लायर इज लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी इंडिया के बाहर वो लोकेट करता है, एंड रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट केस एप्लीकेबल हो जाता है, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। यानी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए कितना सिंपल है सर, कोई भी सर्विस, कोई भी सप्लायर इंडिया के बाहर बैठ के दे रहा हो, किसी को भी दे रहा हो, तो वो मेरा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में कवर हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ओशन फ्रेट यहाँ से वहां से सीरियल नंबर 10 से हटने के बाद भी आप देखिए कोई भी सर्विस फ्रेट, कोई भी सप्लायर फॉरेन का शिपिंग लाइन रेसिपिएंट इंडिया में, तो भी सीरियल नंबर 1 के अंदर आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पे आया कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई की कोई रेलेवेंस रहेगा या नहीं रहेगा, क्या इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में या जो नोटिस मतलब डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा या नहीं रहेगा। सर एक चीज हमें समझना जरूरी है, किसी भी ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ट्रांजैक्शन शुड क्वालिफाई एज सप्लाई। सप्लाई सेक्शन 7 में लिखिए, जहां पे वो सेक्शन 7 में बोलता है सेल एक्सचेंज लीज लाइसेंस बार्टर एक्सचेंज, यानी जब एक सप्लायर एक रेसिपिएंट को कुछ दे रहा है तो उन्होंने कवर किया। उसके बाद उन्होंने कवर किया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आईजीएसटी एक्ट में कैटेगोरिकली डिफाइंड है, एंड इट मींस वेयर सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, recipient is located in India, and the place of supply is also in India। यानी जब प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है तभी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कंप्लीट होता है, तभी सप्लाई कंप्लीट होती है, तभी यहाँ पे आपको आरसीएम पे करना है। बट इफ द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आपने एक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर दुबई गए, दुबई में यू हैव टेकन अ होटल। अब होटल कहाँ पे लोकेटेड है सर, दुबई में। एनी सर्विस, यस, होटल एकोमोडेशन सर्विसेज, सप्लायर दुबई होटल, रेसिपिएंट यू, आपने अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए दी। फिर तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आरसीएम पे करना है। बट वी ऑलवेज से कि हमें आरसीएम पे नहीं करना, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू क्वालिफाई एज अ सप्लाई, इस ट्रांजेक्शन को सप्लाई बनना जरूरी है। सप्लाई बनने के लिए इसको इंपोर्ट और सर्विसेज की डेफिनेशन कंप्लीट करना है, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन क्या कहती है, सप्लायर इंडिया के बाहर, तो होटल इंडिया के बाहर, रेसिपिएंट इंडिया में, बट प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया आना चाहिए। जबकि हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स क्या बोलते हैं, जहां पे भी इमोल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो अकोमोडेशन का प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर रह जाता है, मैं उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करूंगा अंडर आरसीएम। ये रही आपकी सेक्शन 211 आरसीएम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की कंडीशन। इसमें थर्ड कंडीशन के ऊपर मैं स्ट्रेस डाल रहा हूं, दैट द प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी इन इंडिया, और जब तक वो नहीं है आपको कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हो। नेक्स्ट इज जीटीए। तो ये बोलता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड होना चाहिए। सर इंपॉर्टेंट, गुड्स बाय रोड। अगर ट्रांसपोर्टेशन रोड के अलावा किसी और मोड से हो रही है तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। सप्लायर कौन होना चाहिए, सप्लायर जीटीए होना चाहिए। जीटीए कौन होता है, जो बिल्टी इशू करता है, यानी एलआर इशू करता है। और रेसिपिएंट, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एनी रेसिपिएंट नहीं है, यहाँ पे इन्होंने कैटेगोरिकली लिख दिया कि रेसिपिएंट कौन होगा, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और लास्ट में लिखा है रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। उसमें स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, गवर्नमेंट बॉडीज विच हैव ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन फॉर डिडक्टिंग टीडीएस आर नॉट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। अब यहाँ पे आप देखिए, आप सीए है, आप रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, तो आपको जीटीए का लगेगा अगर आप अपने कोई गुड्स की मूवमेंट करा रहे हैं। लेकिन इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ, और आप अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं एक प्रेमाइसिस से दूसरी प्रेमाइसिस, जिसके लिए आपने जीटीए की सर्विसेज ली, तो आप अगर फैक्ट्री नहीं है, सोसाइटी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं है, तो आप सिर्फ इस पर्पस के लिए कि मेरे को जीटीए की सर्विसेज ले रहा हूँ मुझे रजिस्ट्रेशन ट्रिगर होगा, वो गलत कंसेप्शन है। इट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, या मैं जैसे बोलूंगा मिसकंसेप्शन है कि हर आरसीएम को पे करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन ट्रिगर होती है।
पहले रेसिपिएंट पढ़ना है। अगर रेसिपिएंट बोल रहा है कि रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो अनरजिस्टर्ड के ऊपर ये कैटेगरी लगेगी ही नहीं, और जब लगेगी ही नहीं तो आपको वो टैक्स पे नहीं करना है। यहाँ पे कैटेगोरिकली लॉ ने बोला कि ये ट्रांजैक्शन सीरियल नंबर 2 लगेगा भी तभी जब फॉरवर्ड टैक्स पे चाहे टैक्स नहीं लगा हुआ है। यानी अगर सप्लायर ने फॉरवर्ड टैक्स लगा रखा है तो ये टैक्स आरसीएम पे नहीं होगा। यानी या तो फॉरवर्ड टैक्स लगेगा या रिवर्स चार्ज लगेगा। और आरसीएम तभी लगेगा जब फॉरवर्ड टैक्स नहीं लगा हुआ, फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगा हुआ। और आपको जो टैक्स भी पे करना है वो 5% पे करना है, ना ही 18%। जो अब पहले 12 होता था वो तो हट ही गया, तो अब वो 18% आप लोगों को पे करना होगा इस केस के। ओ सॉरी, 5% पे करना होगा। 18% सप्लायर की चॉइस है, इफ ही विशेस टू पे ऑन 18%, तो आपको पे नहीं करना होगा। लीगल एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सर अब इसमें दो सर्विसेज हमने क्लब कर दी हैं। तो नंबर 3 है लीगल सर्विसेज, जहां पे वो बोलता है सप्लायर एडवोकेट होगा या सीनियर एडवोकेट होगा, और कोई भी बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी की सर डेफिनेशन गिवन है, बहुत सिंपल है, मींस एनी पर्सन कैरिंग आउट बिजनेस। आप नीचे येलो बॉक्स में सेकंड लाइन आइटम देख लीजिए, मींस एनी पर्सन कैरिंग आउट बिजनेस। यानी आप और मैं बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं तो हम इसमें कवर हो गए, एनी बिजनेस एंटिटी। और अगर हमने किसी भी एडवोकेट की सर्विसेज ले ली तो अभी जब हम रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 24 पढ़ेंगे तो यहाँ पे मेरी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। लेकिन अगर कोई नॉन बिजनेस एंटिटी रिसीव कर रहा है तो उसको आरसीएम पे करने की लायबिलिटी नहीं। एंड आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल सर्विसेज क्या है? So, अगर कोई भी आप आर्बिट्रेशन की सर्विसेज ले रहे हैं फ्रॉम एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, तो कोई भी बिजनेस एंटिटी है उसको आरसीएम पे करना पड़ेगा। तो रूटीन पे नहीं, लेकिन अगर कोई बिजनेस एंटिटी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की सर्विसेज ले रही है, वो भी ट्राइब्यूनल से ही ले रही है, भी उसको आरसीएम पे करना है। तो यहाँ पे हमने तीन कैटेगरीज को अभी तक डिस्टिंग्विश किया है। यानी हर पॉइंट के ऊपर ये देखने की कोशिश हो रही है कि सप्लाई क्या है, सप्लायर क्या है, एंड रेसिपिएंट क्या है। नेक्स्ट इज स्पॉन्सरशिप एंड आरसीएम। तो सर स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज, कोई भी पर्सन अगर बॉडी कॉर्पोरेट रेसिपिएंट है, सप्लायर कोई भी हो सकता है लेकिन रेसिपिएंट या तो बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फॉर्म है, तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म को आरसीएम पे करना पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक सप्लायर है, एक रेसिपिएंट है। सप्लायर एक सप्लाई दे रहा है, रेसिपिएंट उसके बदले में कैश दे रहा है। तो जो सप्लाई थी वो स्पॉन्सरशिप की सप्लाई थी, जिसका मतलब कि उसने बोला कि मैं अपनी इवेंट में आपका नाम लिख दूंगा, आपका लोगो लगा दूंगा, आपके डिस्प्लेस लगा दूंगा। इट विल बिकम स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। रेसिपिएंट उसके बिहाफ पे पैसे देंगे, और फिर जैसे हमारे आईपीएल के अंदर है स्पॉन्सर्ड बाय टाटा या जो भी आता है, तो वहां पे टाटा बिकम्स द रेसिपिएंट, IPL organization becomes the supplier, and Tata will pay money and also pay RCM because they are a body corporate or a partnership firm. यानी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के अंदर व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू सी इज वेदर द रेसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म। अगर वो नहीं है तो आरसीएम विल नॉट अप्लाई। आशा जी आस्किंग व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। मैम आप और मेरे बीच में एक बिजनेस डिस्प्यूट हो गया और हम ट्राइब्यूनल में चले गए, तो वहां पे जो सर्विसेज प्रोवाइड होती है वो होती है आपकी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल सर्विसेज। सो कई बार आप मेडिएशन करते हो विदाउट कोर्ट बीइंग इन्वॉल्व, और जब आप कोर्ट के थ्रू करते हो तो वहां पे स्पेसिफिकली आपके ट्राइब्यूनल्स भी बने हुए हैं जहां पे आप अपनी आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंड आरसीएम। मेरे अकॉर्डिंगली 99.99% जो मिस्टेक एज अप हम लोगों की हो रही है वो हो रही है सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। हम रेंट भी देख लेते हैं, जीटीए भी देख लेते हैं, सिक्योरिटी भी देख लेते हैं, लेकिन हम लोग सिक्योर सर्विसेज बाय गवर्नमेंट को देखते ही नहीं है कि क्या। और ये कैटेगरी डे वन से नोटिफिकेशन में एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये इंश्योर करना है कि कोई भी सर्विसेज अगर गवर्नमेंट से ली गई हैं तो हम लोगों को इंश्योर करना है कि उसके ऊपर आरसीएम पे हो। इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं जब हम एग्जेम्पशन की नोटिफिकेशन देखते हैं, बट प्रीडोमिनेंटली सारी सर्विसेज इसमें कवर हो जाती हैं।
अब मैं यहाँ पे पहले पूरा प्रोड्यूस कर रहा हूँ। पहले आप देखिए सिक्स, इट स्टार्ट विद एनी सर्विसेज एक्सक्लूडिंग। उसने पहले वन में हटाया रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, लेकिन नीचे सिक्स ए में देखिए रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी अलग से ऐड कर दिया। यानी रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी पे भी टैक्स आरसीएम पे करना पड़ेगा। उसके नीचे सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी अगर आप स्पीड पोस्ट करा रहे हो, स्पीड पोस्ट पे वो ऑलरेडी फॉरवर्ड चार्ज लगा रहा है, तो वहां पे आरसीएम नहीं लगेगा। दूसरा क्या है, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंट्स ऑफ अ पोर्ट और एन एयरपोर्ट। तो जो भी शिपिंग लाइंस और एयरलाइंस गवर्नमेंट ऑपरेट करता था उसके ऊपर भी वो लोग टैक्स साथ के साथ लगाते थे, इसलिए उसको बाहर कर दिया। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, यानी जो रेलवे अगर चल रहा है, या तो वो एग्जेम्प्टेड होगा या आपको टैक्स पे नहीं करना। यानी गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट जहां पे या तो वो खुद लगा रही थी उसको बाहर कर दिया, बाकी कोई भी सर्विस को बोला कि आपको टैक्स पे करना है। और सप्लायर कौन होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी। रेसिपिएंट कोई भी बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी की डेफिनेशन सर हमने अभी पढ़ ली थी, कोई भी पर्सन जो बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस एंटिटी है। और इमल प्रॉपर्टी के लिए भी एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड टैक्स। तो इमल प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने ये नहीं बोला एनी बिजनेस एंटिटी। अगर किसी बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर 10 लाख रुपए है, वो अनरजिस्टर्ड है और उसने गवर्नमेंट से कोई जगह ले रखी है, उसको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर वो और कोई सर्विसेज ले रहा है जो सिक्स में कवर हो रही है, तब उसको रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन आरसीएम की वजह से जब ट्रिगर होता है तो आपको रेसिपिएंट को, अब यहाँ पे आप देखो सिक्स और सिक्स ए में कैसे डिस्टिंग्विश हो गया कि 10 लाख वाला सप्लायर अगर गवर्नमेंट से सिक्योरिटी सर्विसेज ले ले कि भाई मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए बिजनेस एंटिटी को, तो वो सिक्स में कवर हो जाएगा, आरसीएम लग जाएगा, नीचे कवर नहीं होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, यहाँ पे दो मेजर एग्जेम्पशन हैं। पहली एग्जेम्पशन है अगर आप 5,000 रुपए तक की कोई भी सर्विस गवर्नमेंट से ले रहे हो तो वो एग्जेम, तो 5,000 से नीचे वाली आपकी एग्जेम्पशन में चली जाएंगी। प्लस अगर आप गवर्नमेंट को कोई अमाउंट दे रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए कि टू रजिस्टर योर सेल्फ इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, तो वो बाय मतलब किसी भी अमाउंट तक के लिए वो एग्जेम्पशन आपके पास अवेलेबल है। अब इसके अंदर एक इशू आता ही आता है, और जो आशा जी ने भी पोस्ट कर दिया कि एमसीए फीस का क्या होगा। एमसीए फीस भी थियोरेटिकली इसके अंदर कवर होंगी। उसमें आपको ये देखना है जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, स्टैम्प ड्यूटी है वो हट जाएंगी। अदर देन स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, बाकी सारी चीजों के लिए आरओसी आपसे क्या पैसा ले रहा है, आरओसी इज चार्जिंग मनी सो दैट इट कैन मेंटेन योर रिकॉर्ड एंड इफ रिक्वायर्ड प्रोवाइडेड टू एनी ऑफ द स्टेक होल्डर। ये कि यानी किसी शेयर होल्डर को चाहिए, बैंक को चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चाहिए, इन्वेस्टर को चाहिए, किसी एनालिस्ट को चाहिए, तो वो उसको प्रोवाइड करता है। सो ही इज प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज, वो आपका डाटा कस्टोडियन भी बनता है और वो दूसरों को प्रोवाइड भी करता है। तो दैट बिकम्स अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो यहाँ पे कवर होता है। जस्ट वन। संजय सिंगला इज आस्किंग कि जो स्पेशल नंबर फॉर व्हीकल है, सर स्पेशल नंबर फॉर व्हीकल इफ इट इज बाय अ बिजनेस एंटिटी एंड आई एम एज्यूमिंग कि आपने जो अमाउंट मतलब इट इज नॉट कवर्ड इन द रजिस्ट्रेशन, एक एग्जामेशन मैंने बोला रजिस्ट्रेशन के लिए। अब सर वो टेक्निकली मुझे भी नहीं पता कि वो रजिस्ट्रेशन में कवर होगा या नहीं होगा, बट अगर वो रजिस्ट्रेशन के क्लॉज में नहीं हो रहा एंड इट इज ओनली अ सर्विस कि हम आपको ये स्पेशल नंबर अलॉट करने के 5 लाख रुपए ले रहे हैं, देन इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस और आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा। बट अगेन आपको देखना है कि ये सर्विस आपने ली किससे, क्या आपने ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ली, स्टेट गवर्नमेंट से ली, यूनियन टेरिटरी से ली, लोकल अथॉरिटी से ली, या किसी मैंने गवर्नमेंट बॉडी से ले ली है। तो सर गवर्नमेंट बॉडी बिल्कुल डिफरेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी डिफरेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इसके अंदर मिनिस्ट्रीज भी आती हैं, इसके अंदर मिनिस्ट्रीज भी आती हैं, लेकिन इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल दिल्ली जल बोर्ड है या नोएडा जैसी अथॉरिटीज है, वो इसके अंदर नहीं कवर होती, उनके लिए अलग से आपको देखना पड़ेगा। सो अगेन आपको वो देखना पड़ेगा जो स्पेशल नंबर की रजिस्ट्रेशन है वो आपने पेमेंट किसको करी, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट बन भी रही है या नहीं बन रही, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और वो। गवर्नमेंट ने इसमें एक क्लेरिफिकेशन दिया कि जो ग्रांट ऑफ लिकर लाइसेंस है वो नो सप्लाई है फॉर जीएसटी पर्पसेस, इट विल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उसके ऊपर आरसीएम हम लोगों को पे नहीं करना। एंड सर ये 2019 में आ गया था।
तो जितने भी लाइसेंसेस वगैरह हैं उन सब के ऊपर द गवर्नमेंट एज्यूम्स कि आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा. Entry 6A says that any person mean even if not business but property taken from government then registration required. Further, what could be covered in this entry? मैम, सिर्फ और सिर्फ रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी है. एंड किसी भी पर्सन ने अगर गवर्नमेंट से वो प्रॉपर्टी ले रखी है, गवर्नमेंट को वो रेंट दे रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन ट्रिगर कर गई. लेकिन सॉरी, एनी पर्सन रजिस्टर्ड, तो जो रजिस्टर्ड है तभी उसको देना है, अदरवाइज 6A इज नॉट एप्लीकेबल. एंट्री नंबर 6 में सब कुछ आएगा, 6A में ही हैज टू बी प्री रजिस्टर्ड. अगर वो प्री रजिस्टर्ड नहीं है तो 6A एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको आरसीएम पे नहीं करना. यानी सिर्फ आरसीएम लेने के लिए, पे करने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन ट्रिगर नहीं होगा. नेक्स्ट इज रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी. तो सर, ये 18 जुलाई 2022 से गवर्नमेंट ने बोला कि कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है वो आपकी आरसीएम में आई. और 10 अक्टूबर 24 से उन्होंने बोला अदर देन रेजिडेंशियल. मेरे लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है सर. सप्लायर का सिरदर्द तो सप्लायर जानेगा. सप्लायर का सिरदर्द तो सप्लायर जानेगा. मैं अपने टैक्स पेयर के पास अभी आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी देख रहा हूँ. जब मैं आरसीएम में बैठा तो मेरे को क्या देखना है, क्या सप्लायर ने टैक्स चार्ज किया हुआ है. अगर सप्लायर ने टैक्स चार्ज किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे रिवर्स चार्ज पे करना है. नहीं तो मुझे रिवर्स चार्ज, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे नॉन रेजिडेंशियल हो, रेसिपिएंट में कोई भी रजिस्टर्ड, इफ योर क्लाइंट इज अ रजिस्टर्ड पर्सन देन ही हैज टू पे आरसीएम. तो उसको आरसीएम पे करना ही करना है. अगर उसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगा तो हम क्या करें, रेंट का पूरा लेजर निकाला, देखा कि कितना टैक्सेबल से आ रहा है, कितना एग्जेम्प्ट से आ रहा है. जो एग्जेम्प्ट पर्सन यानी अनरजिस्टर्ड से आ रहा है उसके ऊपर मैं आरसीएम पे कर दूं. अब मैं जब सप्लायर होऊंगा तो मैंने ये टेस्टिंग कर ली होगी कि अगर मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की दे रहा हूँ, अगर मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की दे रहा हूँ तो सामने वाला ही भरेगा. अगर मैं नॉन रेजिडेंशियल दे रहा हूँ और मैं रजिस्टर्ड हूं तो मेरे को भी पे करना पड़ सकता है. यानी सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर दो कॉम्बिनेशन है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करूं, कमर्शियल नॉन कमर्शियल या रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल. बट एज अ रेसिपिएंट मेरे लिए बहुत सिंपल, या फॉरवर्ड चार्ज, इफ नॉट देन रिवर्स चार्ज. इसको आप जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे वो उतना हो जाएगा, लेकिन जितना आसान करेंगे, आपको सारे रेंटल के ऊपर आरसीएम पे करना जरूरी है. डायरेक्टर सर्विसेज एंड आरसीएम. सर, ये कॉन्सेप्ट बहुत बारी डिस्कस हो चुका है. गवर्नमेंट ने अब इस पे फाइनली क्लेरिफिकेशन इशू कर दी है कि जब हम बात करते हैं कि सर्विसेज ऑफ अ डायरेक्टर, इट मींस ऑल सर्विसेज अदर देन सैलरी. यानी सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स में जो सैलरी की फॉर्म में टैक्स पेयर ने ले रखा है, मतलब डायरेक्टर ने ले रखा है, वो कभी भी डायरेक्टर की सर्विसेज में नहीं आएगा. उसके अलावा ही चीजें आएंगी. मैं ये केस रूलिंग हटा रहा हूँ. सो ये आपकी क्लेरिफिकेशन इशू हुई थी बाय सर्कुलर 140, जिसने बोला था कि अगर वो एम्प्लॉय है तो कोई आरसीएम नहीं लगेगा, अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो आरसीएम में अप्लाई. 192 पे नहीं लगेगा. 194 जे की अगर आप इनकम अपने डायरेक्टर को दे रहे हो तो यस, उनको पे करना पड़ेगा. करण सहगल जी इज आस्किंग, इन केस ऑफ रेस्टोरेंट, सिंस वी डू नॉट गेट द इनपुट स्टिल डू वी हैव टू पे द आरसीएम. करण जी, जब ये नोटिफिकेशन आई थी जिसमें आरसीएम के ऊपर पे करना था रेंटिंग का और नॉन कमर्शियल आई थी, आई हैड कैटेगोरिकली स्टेटेड एट वेरियस फोरम्स कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड द बिगेस्ट हिट इज फॉर द रेस्टोरेंट. क्योंकि 90% रेस्टोरेंट लोकेटेड है मॉल्स वगैरह के अंदर, कमर्शियल प्लेसेस के अंदर, जहाँ पे आप और मेरे जैसे ओनर्स उसके प्रॉपर्टी या जो फ्रेंचाइजी आउटलेट है उसके ओनर्स हैं या किराए पे देते हैं जगह को. हम लोगों की टर्नओवर शायद 20 लाख से कम है, हम अनरजिस्टर्ड है. लेकिन अब इनको टैक्स पे भी करना पड़ेगा और क्रेडिट भी नहीं मिलेगा. तो दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज फॉर द रेस्टोरेंट. लेकिन अब तो इन लोगों को आदत पड़ चुकी है, दे हैव स्टार्टेड एब्जॉर्बिंग द कॉस्ट. नेक्स्ट है सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये ओमिट हो चुकी है, आई एम स्किपिंग दैट. सिक्योरिटी सर्विसेज. सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर सर, इट इज नॉट मैन पावर सप्लाई, इट इज प्योरली सिक्योरिटी सर्विसेज. So security services, if they are provided by any person other than body corporate, यानी कंपनी को छोड़ के कोई भी पर्सन प्रोवाइड कर रहा है टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो मेरा आरसीएम अप्लाई हो जाएगा.
अगेन यहाँ से दो कैटेगरीज को बाहर किया गया, गवर्नमेंट जहां पे रजिस्टर्ड है फॉर डिडक्टिंग टीडीएस, और दूसरा कॉम्पोजिशन सप्लायर। ये सर्विसेज मैन पावर से डिफरेंट है। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है। सो सप्लायर अगर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट यानी एलएलपी या कंपनी है तो आप छोड़ दीजिए, बट अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म में इंडिविजुअल है तो आप लोगों को इसके ऊपर आरसीएम पे करना पड़ेगा। Another query is, in case of individuals being director in more than one company, especially private limited, they are taking salary from one. Is it fine? There can be an person who is employed in 10 companies. वो 10 companies और employee के बीच की privity of contract है कि whether they are allowing him to be employed in 10 companies or not. उसका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, till the time his compensation is in the nature of salary deductible under section 192. हाँ, ये तो हो गया, मतलब it is already existing. So renting of motor vehicle, again इट इज अंडर आरसीएम, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी एलएलपी को हटा के है रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। अब यहाँ पे एक सप्लायर है चार्ज 12%, इसको हम 12% की जगह, क्योंकि अब रेट चेंज हो गए हैं तो वो अकॉर्डिंगली, इस नोटिफिकेशन में अभी भी 12% ही लिखा हुआ है, बट वी विल प्रिज्यूम कि जहाँ पे वो 18% चार्ज कर रहा है तो कोई आरसीएम नहीं लगेगा, क्योंकि उसने फॉरवर्ड चार्ज पे लगा दिया है। अगर आपको आरसीएम पे करना है तो आप 5% के ऊपर टैक्स को पे करेंगे। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो है वो इंक्लूडेड होना चाहिए। अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड नहीं है तो वो हायरिंग बन जाएगा, तो डिफरेंट उसके ऊपर आपका ट्रीटमेंट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अभी तक हमने जो किया, हमने कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज को सिलेक्ट करके पढ़ा। नाउ देर आर सर्टेन गुड्स ऑल्सो जिसके ऊपर हमें आरसीएम पे करना पड़ता है। आप देखेंगे 90% ऑफ दीज गुड्स आर फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर। वो एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर क्या करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट को बोलते हैं भैया इससे कंप्लायंस नहीं होगी, लेकिन अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो ये कंप्लायंसेस को कंप्लीट करेगा। तो कैशू नट्स हो गए, आपके बीड़ी के रैपर्स हो गए, टोबैको लीव्स हो गए, मिंट ऑयल्स वगैरह आपके हो गए, एसेंशियल ऑयल्स, स्किल या सिल्क यार्न, रॉ कॉटन, लॉटरीज, इन सब केसेस के अंदर आप लोगों को आरसीएम पे करना पड़ेगा, इवन दो जो अंडरलाइन सप्लाई है दैट इज फॉर गुड्स। रॉ कॉटन के अंदर सर क्लासिफिकेशन आप देख लेंगे। अभी एक रिसेंटली, आप रिसेंटली तो नहीं, आई वुड से अराउंड 1.5 year बैक आई वाज डूइंग वन ऑफ द केसेस जहां पे कॉटन भी दो कैटेगरीज में, एक गिंड और एक नॉन गिंड कॉटन थी। तो यहाँ पे जो रॉ कॉटन है दैट वाज नॉन गिंड, तो वो बिना गिनी करी हुई जो कॉटन होती है वो यहाँ पे कवर होती है, जिसपे आपने गिनी कर दी है वो यहाँ से बाहर हो जाती है। सो वंस यू आर इंटरप्रेटिंग इट फॉर अ क्लाइंट, तो ऑल्सो सी की स्पेसिफिक गुड्स क्या है, उसकी क्या और भी कोई डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं नहीं होती हैं। अगर डिफरेंट फॉर्म्स हैं तो आपको इंश्योर करना है कि वो डिफरेंट फॉर्म्स स्पेसिफिकली कवर्ड है आरसीएम में या नहीं है। यूज व्हीकल्स अगर आप गवर्नमेंट से परचेज कर रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा मेटल स्क्रैप, ये ऑलरेडी अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट आई थी तो आप लोगों को पे करना पड़ेगा। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग आरसीएम, क्योंकि अब हमारे को रजिस्ट्रेशन भी करना है। आई एम जस्ट सीइंग देयर आर अ कपल ऑफ क्वेरीज ऑन द चैट बॉक्स। Any services provided by an unregistered person to a registered person are covered or only? Radhika ji, it is very clear. There are total 23 effective services as on date. एवरी सर्विस, यानी वो जो 23 सर्विसेज हैं, हर 23 के सामने आपको ये देखना पड़ेगा कि रेसिपिएंट कौन होना चाहिए। कहीं पे वो रजिस्टर्ड पर्सन प्री रिक्विजिट करता है, कहीं पे वो बोलता है रजिस्टर्ड हो या ना हो आपको पे करना है, कहीं पे वो बोलता है आप कंपनी हो या एलएलपी हो तभी पे करना है। तो हर सर्विस को देखते हुए डायरेक्ट अनरजिस्टर्ड के ऊपर कुछ भी नहीं है, अन किया मैंने अनरजिस्टर्ड से किया तो मुझे पे करना है, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। वो सिर्फ सेक्शन 9(4) में है, सिर्फ रियल एस्टेट वालों के लिए है। और कहीं पे अब ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको अनरजिस्टर्ड से डायरेक्ट पे करना पड़ेगा, बट आपको अपनी 23 लाइन आइटम पढ़ के फिर कंक्लूड करना पड़ेगा। इन केस ऑफ इंश्योरेंस रिन्यूअल, इंश्योरेंस के अंदर मैम वो डायरेक्ट फॉरवर्ड चार्ज के ऊपर होता है स्वाति जी, तो इंश्योरेंस के रिन्यूएबल में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, आपको आरसीएम पे नहीं करना। भावना जी, आरसीएम इज पेड ऑन अकाउंट ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशन बाय वे ऑफ DRC 03। हाउ टू क्लेम द आईटीसी ऑन दिस थ्रू 3B, एज दिस विल ब्रिंग अ मिसमैच इन 3B। मैम
मिसमैच तो आएगा, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन आप अपना आईटीसी क्लेम करेंगे। आईटीसी क्लेम करने के बाद आपको डीआरसी 01C इशू हो जाएगा। वहां पे यू विल कैटेगोरिकली स्टेट दैट यू हैव पेड टैक्सेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट फॉर आरसीएम, एंड एज पर सर्कुलर 211 आई एम एलिजिबल टू क्लेम द क्रेडिट। तो मैंने वो क्रेडिट 3B से क्लेम कर लिया। The only thing that should be very carefully seen is कि DRC 03 should not be paid under Section 74, at least for RCM. RCM वाला आप Section 74 में मत पे करना, क्योंकि Section 17(5)(I) कैटेगोरिकली से कोई भी टैक्स Section 74 में पे किया तो उसका आईटीसी नहीं मिलता। If any import of service is taken by employee and claimed as reimbursement, whether RCM applies, then इवेंचुअली किसका P&L हिट हो रहा है वो देखना है। अगर कंपनी का P&L हिट हो रहा है वाया मीडियम एम्प्लॉय था तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ट्रीट होगी। स्वाति जी, बट इन इंश्योरेंस वी आर एज रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, सो इट मैम आप रेसिपिएंट तो हर सप्लाई के लिए हो, सीए की सर्विसेज के लिए भी हो। एयरटेल आपको इंटरलाइन या टेलीफोन की सर्विसेज दे रहा है, बट आरसीएम हर एक पे एप्लीकेबल नहीं। आरसीएम सिर्फ 23 सर्विसेज पे एज ऑन डेट एप्लीकेबल है। पहले तो ये देखें कि क्या इंश्योरेंस उन 23 सर्विसेज में आता है, तो वो उन 23 सर्विसेज में नहीं आता है। अभी अगर आपने स्टार्टिंग से देखा होता तो शायद हमने वो 23 सर्विसेज पूरी लिस्ट डाउन करी थी कि कहाँ पे है। 23 में इंश्योरेंस नहीं आता, उस पे आरसीएम की बात हम नहीं करेंगे। मूविंग अहेड, द सेकंड टॉपिक इज रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर स्टार्ट करने से पहले सर मैं ये सारे प्रोविजंस को स्किप करके मैं चला जाता हूँ रूल 14A के ऊपर, जो थोड़ा सा नया रूल आया है जिसको समझना हम सब लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। बाकी सारी चीजें आई विल कम बैक एंड डिस्कस, क्योंकि टाइम इज लिमिटेड, तो मैं उसमें वो चीज पे फोकस करना चाह रहा हूँ विच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। सर तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमारा होता था, जिसमें हम सबसे पहले अपना REG 01 को स्टार्ट करते थे। जस्ट 1 मिनट। सो जहां पे सबसे पहले मेरा पैन और ईमेल वेरीफाई होता है, पैन ईमेल एंड मोबाइल नंबर आईटी पोर्टल से, फिर मेरे को एक टेम्पररी टीआरएन मिलता है। यूजिंग दैट आई फाइल माई पार्ट B ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एक एक्नॉलेजमेंट इशू होती है जो प्रॉपर ऑफिसर के पास जाती थी, एंड विद इन 7 और 30 डेज, 30 डेज जहाँ पे मैं फिजिकल करता था, वो या तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके आरसी इशू करता था या फिर उसको वो आपसे क्वेरीज पूछ के फाइनली एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता था। ये प्रोसेस एज इट इज चल रहा था, एंड वी ऑल न्यू दैट कि ये कितना कम्बरसम हो चुका था ऑफ लेट। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को रियलाइज किया, एंड इन दी काउंसिल मीटिंग ऑफ सितंबर 2025 उन्होंने बोला कि सर हम इस केस के अंदर छोटे सप्लायर्स के लिए एक इजी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सर सेक्शन, सॉरी, रूल 9A एंड रूल 14A। रूल 9A एंड रूल 14A। पहले मैं रूल 9A को वर्बेटम पढ़ता हूँ। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 9, जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको ओवरराइड करते हुए बोला, एनी पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 8, 12 और 17 shall, upon identification on the common portal based on data analysis and risk parameter, be granted registration electronically by the common portal within 3 working days from the date of submission of application। यानी यहाँ पे आप जब एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको एनालाइज करेगा रिस्क पैरामीटर के ऊपर, और एनालाइज करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा विद इन 3 वर्किंग डेज। एंड सर थ्योरेटिकली ये 3 वर्किंग डेज होते थे, प्रैक्टिकली ये एक एक दो दो तीन तीन घंटे के अंदर ये रजिस्ट्रेशन ला रहे हैं। नाउ एवरी प्रोफेशनल इज एक्चुअली वेरी हैप्पी कि हमारे को रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से मिल रही है। बट सर यहाँ पे एक थिन लाइन है, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को ध्यान करनी है। सबसे पहली चीज, इफ यू आर डीलिंग विद अ क्लाइंट विच इज एक्सपेक्टेड टू डू ओनली B2B supplies and which is expected to have a say outward taxable supplies of 5 lakh rupees a month, 10 lakh rupees a month, तो उसको इस रूल में लेके आना है या नहीं आना है, इट शुड बी अ क्वेश्चन मार्क। इट शुड नॉट बी अ ब्लाइंड थिंग कि मुझे लेके आना है। मैं रूल 14A का सब रूल 1 पढ़ रहा हूँ। एनी पर्सन
who has made application for registration under Rule 8 and who determines his total output liability on supply of goods or services or both made to registered person, यानी सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की बात हो रही है, ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी और आईजीएसटी एंड कंपनसेशन does not exceed 2.5 lakh shall have an option to get registration electronically in accordance with the provisions of this rule. यानी इट इज नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन, रूल 14 है, मैंडेटरी नहीं है, इट इज एन ऑप्शन। और ऑप्शन किसको अवेलेबल है? द ऑप्शन इज अवेलेबल टू अ पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन if if supplies to a registered person is generating outward supply or outward tax of 2.5 lakh rupees or less। यानी हर महीने अगर 2.5 लाख रुपए से कम का आउटपुट टैक्स आ रहा है तो आप ये करिए। तो ये बहुत आसान प्रोसेस है। अगर आपका रिटेल काउंटर है, सारी सप्लाईज B2C है, चाहे 10 करोड़ की सप्लाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आपको रूल 14A में रजिस्ट्रेशन 1 घंटे में मिलेगा। लेकिन अगर आप B2B सप्लाई करते हो और आप 50 लाख रुपए महीने की करना चाहते हो जिसमें 9 लाख रुपए का आउटपुट टैक्स बनेगा, आपको रूल 14 रिस्ट्रिक्ट कर देगा। अब ये रिस्ट्रिक्ट क्या कर देगा सर? आपको 2.5 लाख से ऊपर का आउटपुट टैक्स ही रिपोर्ट नहीं करने देगा। 2.5 लाख से ऊपर का आउटपुट टैक्स ही रिपोर्ट नहीं करने देगा। और जब आपको, आप एज्यूम करते हैं कि आपने पहले तो डे 1 पे ले ली, अब जब आपको टैक्स पे करने की बारी आई, ये आपके बिजनेस एकदम से बढ़ गया और अब 2.5 लाख से ऊपर जा रहा है, तो ये कहता है पहले आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी अपनी 14A की रजिस्ट्रेशन और दूसरी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। और जब आप वो अप्लाई करेंगे तब आपका जैसे नॉर्मल वेरिफिकेशन होती थी हम वैसी ही वेरिफिकेशन करेंगे। उस समय भी उन्होंने बोला कि हम आपकी डाटाबेस रिस्क बेस्ड असेसमेंट देख लेंगे, बट मोर और लेस आप ये मान के चलिए आपकी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जैसे होनी थी तो वैसा ही होगा और वो पूरा प्रोसेस होगा। और जब तक आपको यहाँ से विड्रॉ करके नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट नहीं कर देते तब तक आप 2.5 लाख से ऊपर का आउटपुट टैक्स नहीं दे पाएंगे। तो रूल 14 आया तो है, इसको सर जब भी अप्लाई करें एक बार ये ध्यान से पढ़ ले। अंदर घुसना बहुत आसान है चक्रव्यूह की तरह, लेकिन बाहर निकलना बड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। सो B2C सप्लायर्स वेरी गुड। एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जिसकी 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का टोटल टैक्स बनना है, 3 लाख का 18%, 60-70 हजार रुपए का टैक्स बनना है, उन लोगों के लिए इट इज अ ब्लेसिंग। लेकिन जिन लोगों को फ्यूचर में बड़ा बनना है आई वुड सजेस्ट वो नॉर्मल रूट में ही रहें। या जो आज भी बड़े क्लाइंट्स अपनी दूसरी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने की बात करें वो नॉर्मल रूट ही प्रेफर करें, वो रूल 14 ना ले, क्योंकि घूम फिर के उनको ये सारा कंप्लायंस दोबारा से करनी पड़ेगी और बाद में वो उतनी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। विद दिस आई एम कमिंग बैक टू रजिस्ट्रेशन, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट प्रोविजन। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर तीन मेन इश्यूज होते हैं। सेक्शन 22 सेज कि किसको रजिस्ट्रेशन करानी है, व्हाट इज द लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। 24 बोलता है विदाउट थ्रेशोल्ड, विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट, यानी 1 रुपए भी नहीं है तो भी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ सकती है, सेक्शन 24। और सेक्शन 23 बोलता है कि कुछ कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स को कभी रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले सेक्शन 22। तो सेक्शन 22 बोलता है कि अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से नीचे है, अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से नीचे तो आपको रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेनी। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं, आप नीचे वो स्टेट्स हाईलाइटेड है, मणिपुर, नागालैंड, जो दो स्टेट्स रह गई हैं जिनके यहाँ पे आज भी 10 लाख की लिमिट है, बाकी सबकी लिमिट जो उठ के है वो 20 लाख रुपए हो गई। पहले जब जीएसटी आया तो स्टार्टिंग में सबने 10 लाख रुपए की लिमिट रखी थी, यानी J&K प्लस जो भी आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थी। अब इसमें से 4-5 रह गई हैं, सॉरी, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जिन्होंने आज भी 10 लाख रुपए की लिमिट रिटेन करी है। बाकी सबने अपनी टर्नओवर थ्रेशोल्ड को 20 लाख कर दिया। सर यहाँ पे तो कोई मेजर चेंज आया नहीं। जो मेजर चेंज आया वो आया थर्ड प्रोवाइजो सेक्शन 22(1) में ऐड हुआ था, जिसने बोला कि अगर आपकी 40 लाख से ज्यादा, सॉरी, 40 लाख से कम की टर्नओवर है और आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स में डील कर रहे हैं, 40 लाख से कम टर्नओवर है और आप सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन की लिमिट 20 लाख की जगह 40 लाख मान ली जाएगी। अब आप बोलोगे सर उसने एफडी तो कराएगा ही, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट तो आएगा ही, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई बनेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। तो एक्सप्लेनेशन में उसने कैटेगोरिकली बोला है
फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सबसेक्शन a person shall be considered to be engaged exclusively in supply of goods even if he is engaged in exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans, or advances insofar as the consideration is represented by way of interest or discount. यानी अगर वो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है डिपॉजिट पे, लोन पे या एडवांसेस पे, तो उसको कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं होगी, उसको 40 लाख रुपए की लिमिट एज इट इज मिलेगी ही मिलेगी। तो सर यहाँ पे एक मेजर रिलीफ है। जितनी भी बड़ी स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग दिल्ली, इन सब लोगों ने ये नोटिफिकेशन इशू करके बोल दिया है। सबसे अच्छी बात क्या है, ओ सॉरी, सबसे बुरी बात इस नोटिफिकेशन की क्या है, आपको रिस्पेक्टिव स्टेट एक्ट में जाके इंश्योर करना पड़ेगा कि उन्होंने भी ये नोटिफिकेशन इशू करी है नहीं करी है। क्योंकि ये ऑप्शन दोनों जगह, यानी सेंटर ने जेनरिक नोटिफिकेशन इशू करके बोला कि जो स्टेट कर देगी उसको हम यहाँ पे एग्जम्पशन दे देंगे। तो जितनी बड़ी स्टेट्स हैं उन्होंने ये 40 लाख की एग्जम्पशन लगा दी है, बट स्टिल बिफोर टेकिंग दिस कॉल आप एक बार ही इंश्योर कर लीजिए कि आप, तो दिल्ली में है, हरियाणा में है, यूपी में है, बाकी सारी जगह जब भी आप देखें प्लीज इंश्योर कि ये रजिस्ट्रेशन ट्रिगर हुआ है, स्टेट ने रेलेवेंट नोटिफिकेशन इशू कर रखा है या नहीं कर रखा है। 40 लाख रुपए की अगर आप रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हैं तो उसमें ये वाले प्रोडक्ट्स आप अगर डील कर रहे हैं तो आपको वो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन की लिमिट 20 लाख रुपए ही चली जाएगी। यानी अगर आप आइसक्रीम या एडिबल आइसेस की बात करें, पान मसालास की बात करें, टोबैकोस की बात करें, फ्लाई ऐश गुड्स की बात कर रहे हैं, या जो भी ये अदर गुड्स यहाँ पे डिफाइंड है, इन सब के लिए लिमिट ऑफ 40 लैक्स इज नॉट एप्लीकेबल, लिमिट 20 लाख रुपीज की ही रहेगी। तो जब आप अपने क्लाइंट को एडवाइस भी कर रहे हैं तो ये नहीं है 40 लाख ब्लाइंडली बोल देंगे। तो 40 लाख बहुत सोच समझ के आपको किसी को एडवाइस करना है, अदरवाइज बैकफायर मार जाएगा, क्योंकि 20 से 40 लाख रुपए के लिए उस टैक्स पेयर को पूरा टैक्स अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, एंड उसके पास कोई आईटीसी भी एक्यूमुलेटेड नहीं होगा। सर एग्रीगेट टर्नओवर, हम सबको पता है कि वो जितनी भी टर्नओवर होंगी, चाहे टैक्सेबल चाहे एग्जेम्प्ट, वो सारी टर्नओवर यहाँ पे कवर होंगी, तो आई एम स्किपिंग दैट। अब आ जाते हैं सर सेक्शन 24। अब हमें जो दो चीजों पे फोकस करना है वो है सेक्शन 24 किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कब मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी है, उसके बाद 23 में क्या रिलीफ है। बस दो चीजें हम और डिस्कस करेंगे फॉर द नेक्स्ट 15-20 मिनट। तो सेक्शन 24 स्टार्ट विद नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22, यानी 22(1) को ओवरराइड कर गया और बोला कि ये जो अब मैं बंदे बोलूंगा या जो टैक्स पेयर अब मैं बोलूंगा इनको मैंडेटरी जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो पहली, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि वो ओवरराइड कर गया जो आपकी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है। तो उसने सबसे पहले बोला कि अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन इंटरेस्ट रेट सप्लाईज कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। सर्विसेज में 20 लाख तक की एग्जेम्पशन आ चुकी है एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन से। गुड्स के लिए अगर आप 1 रुपए भी इंटरेस्ट रेट सप्लाई करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है। अगर आपको आरसीएम पे करना है, जिस नोटिफिकेशन को अभी हम पढ़ के आ रहे थे 10/2017, अगर हम उसमें कवर हो रहे हैं और वहां पे प्री कंडीशन नहीं है कि मेरा रजिस्टर्ड होना जरूरी है, अगर वो प्री कंडीशन नहीं है तो आपको यहाँ पे सेक्शन 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। अगर आप सेक्शन 95 में कवर्ड हो, फॉर एग्जाम्पल आप ओला हो, आप उबर हो, आप अर्बन क्लैब जैसी एसोसिएशन हो, यानी आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसपे सप्लायर्स आते हैं, जिसपे रेसिपिएंट्स आते हैं, यानी एंड कस्टमर्स आते हैं, आप उन दोनों सप्लायर्स और रेसिपिएंट को मिलवाते हो। लेकिन क्योंकि प्लेटफॉर्म आपका है, आप ही टैक्स की कलेक्शन कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर तो ओला के अंदर 1 लाख ड्राइवर्स है, तो हम 1 लाख के पास तो नहीं जाएंगे, हम आपको बोलेंगे ओला टैक्स जमा करा रहा है। तो 95 जहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व है वहां पे उन लोगों की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है 0 लेवल पे। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आप अपनी स्टेट से बाहर जा रहे हैं, दूसरी स्टेट में बिजनेस करने के लिए आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, इंडिया के बाहर कोई इंडिया में काम करने आ रहा है, कोई सप्लाई देने आ रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करानी है। आईएसडी है तो अब आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, और 1 अप्रैल 25 से गवर्नमेंट ने बोल दिया कि थर्ड पार्टी इनवॉइसेस तो आपको आईएसडी से ही रूट करने हैं। नेक्स्ट इज, अगर आपको टैक्स डिडक्ट करना है 51 में तो मैंडेटरी है। ई कॉमर्स ऑपरेटर अदरवाइज, एक तो 95 वाले हो गए, इसके अलावा बाकी भी हो गए, amazon फ्लिपकार्ट जैसे भी इन्होंने यहाँ पे कवर कर लिए। amazon फ्लिपकार्ट के ऊपर क्या है, मैं सप्लायर हूँ, टैक्स मैं ही पे कर रहा हूँ, यहाँ पे ये उसका टीसीएस कलेक्ट करते हैं, तो इन्होंने इसको भी कवर कर लिया।
जो भी सप्लायर्स ई कॉमर्स पे सप्लाई कर रहे हैं उनको भी कर दिए, यहाँ पे थोड़ी सी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन देना स्टार्ट करा हुआ है। देन जो सप्लाईज एक एजेंट बन के अपने सप्लायर के बिहाफ पे कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला जो एजेंट है उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, क्योंकि वो अगर पूरा टैक्सेबल पर्सन है। फॉर एग्जांपल मैं मारुति हूँ, मैंने बोला आप मेरी गाड़ियां बेचो ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, तो उन्होंने बोला आपको एजेंट हो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर थ्रेशोल्ड, आप मारुति के लिए काम कर रहे हो, एज एजेंट काम कर रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। OIDAR अगर आप हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, यानी नेटफ्लिक्स वगैरह जो है उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेके टैक्स पे करना जरूरी है। और इसके अलावा भी अगर कोई बचा तो डिपार्टमेंट ने बोला हम नोटिफाई कर देंगे कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी को RCM पे करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे 12 उन्होंने आइटम्स डाली, 12 में तो पावर ले ली, और 11 आइटम्स उन्होंने स्पेसिफिकली डाल दी कि इन जगह के ऊपर आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना। सो ये तो आपको लिस्ट देखनी है कि क्या मैं कवर हो रहा हूँ, अगर हो रहा हूँ तो आपको रजिस्ट्रेशन ट्रिगर कराना है। अब आ जाते हैं सर सेक्शन 23 के ऊपर। सेक्शन 23 और 24 का इंटरप्ले जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कि 24 बोल रहा है कि 22 को ओवरराइड कर दो, 22 को ओवरराइड करता हुआ है, लेकिन 23 को ओवरराइड नहीं करता। तो पहले समझते हैं 23 बोलता क्या है। मैं एग्जिस्टिंग प्रोविजन की जगह सीधा फाइनेंस एक्ट 2023 लेके आ रहा हूँ। रेड वाला पोर्शन, द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, नेमली any person engaged exclusively in the business of supplying goods or services or both that are not liable to tax or wholly exempt from tax under this act or IGST act। यानी सबसे पहली चीज उसने क्या बोला, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाईज में डील कर रहे हो, एग्जांपल लेते हैं मिल्क, मिल्क एग्जेम्प्ट है, तो कहता है अगर आप सिर्फ मिल्क में डील कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, चाहे आपकी टर्नओवर 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, या 50 करोड़ है। Second, an agriculturist to the extent of supply of produce out of cultivation of land। यानी एक अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो और आप अपना सिर्फ जो प्रोड्यूस है, जो लैंड से आपने प्रोड्यूस किया है, उसकी बात कर रहे हैं, तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। नाउ रीड द इंपॉर्टेंट प्रोविजन, सब सेक्शन 2 ऑफ 23। notwithstanding to the contrary contained in subsection 1 of 22, यानी लिमिट को भी ओवरराइड किया, और सेक्शन 24 यानी 22(1) बोला लिमिट भी साइड पे रख दो, 24 में जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है उसको भी साइड में कर दो। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन subject to such condition and restriction as may specified therein specify the person कैटेगरी ऑफ पर्सन हु मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन। यानी अगर गवर्नमेंट सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में कोई नोटिफिकेशन निकालती है, उस नोटिफिकेशन के अंदर अगर आप कवर हो रहे हो, तो आपको सेक्शन 24 भी अप्लाई नहीं होगा, जब तक उस सेक्शन उस नोटिफिकेशन की कंडीशंस आपके ऊपर अप्लाई हो रही। अब एग्जांपल ले लेते हैं सर। सबसे पहली नोटिफिकेशन आई थी 5/2017। उसने बोला पर्सन हु आर ओनली एंगेज इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ द टोटल टैक्स ऑन विच इज लायबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रेसिपिएंट। यानी आपकी सारी सप्लाईज पे रेसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, और यहाँ पे सेक्शन 24 लगेगा ही नहीं। यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखी तो आपको कोई 24 में एप्लीकेशन भी नहीं होगी। यानी आपको अगर कोई RCM भी लग रहा है तो वो भी नहीं पे करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो। उसके बाद 7/2017 उसने बोला अगर कोई जॉब वर्कर है जो इंटरस्टेट सप्लाईज कर रहा है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो उसको भी नहीं करना। कंडीशन है सर, जॉब वर्कर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन उसने भी बोला जैसे ही आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होएगी आपको रजिस्ट्रेशन ट्रिगर हो जाएगा। यानी यहाँ पे उसको किससे बचाया गया, कि जब तक थ्रेशोल्ड नहीं हो रही तब तक इंटरस्टेट सप्लाई में कवर नहीं करेंगे, जब तक थ्रेशोल्ड नहीं हो रही तब तक इंटरस्टेट में कवर नहीं करेंगे। उसके बाद सर हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए एग्जेम्पशन आई, और सब मैं 3/2018 एंड 56/2018। उसके बाद आई 10/2017, जहां पे उन्होंने सर्विसेज को बोला
कि 20 लाख रुपए तक की सर्विसेज जो है उस तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप वो लिमिट को एक्सीड करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन ट्रिगर हो जाएगी। तो सर ये सारी नोटिफिकेशन ऑलरेडी सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में इशूड है। तो आपको ये देखना है, अगर आप इसमें कवर्ड हो तो आपको 24 भी नहीं लगेगा। 24 में सबसे हिट इंपॉर्टेंट हिट किस चीज का आता था? आरसीएम का आता था। आपका वो सारा बायपास हो जाएगा। अब सर 65/2017, पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन सप्लाई स्पेसिफाइड अंडर 9(5) through an e-commerce operator who is required to collect TCS and having aggregate turnover less than 10 or 20 lakh रुपए। यानी आप अगर रेस्टोरेंट हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर स्विगी जोमेटो पे लिस्टेड हो, आपकी टर्नओवर अगर 20 लाख से नीचे, तो आपको यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। इवन तो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर से सप्लाई करो, लेकिन आपको एग्जेम्पशन दे दी गई है। सो ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोशिश करी कि 23 को थोड़ा सा ऐसा यूज किया जाए कि आपको नॉर्मल कंप्लायंस से बचे। बट इशू ये आया कि जो 23(1) में है, यानी मैं स्कूल हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैं 23(a) के 1 में कवर होता हूँ। तो 23(a) का 1 जो है वो 24 को ओवरराइड नहीं करता। क्योंकि वो ओवरराइड नहीं करता, तो कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन मैंने रिवर्स चार्ज की ले ली जिसके ऊपर आरसीएम अनरजिस्टर्ड को भी पे करना पड़ता है, यानी जिसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि प्री रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेके आरसीएम को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर रखी है। तो यहाँ पे हमने जो अभी डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया सेक्शन 22। सेक्शन 22 में बेसिकली दो लिमिट्स हैं, एक 20 लाख की, एक 40 लाख की। 40 लाख रुपए की लिमिट सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, और वो भी स्पेसिफिक गुड्स या डीमेरिट गुड्स उसमें से हटा रखे हैं, टोबैको हटा रखा है, ब्रिक्स हटा रखी हैं, आपकी आइसक्रीम वगैरह हटा रखी है। उसके बाद हम सेक्शन 24 में गए, जहां पे उन्होंने 11 आइटम्स को लिस्ट कर रखा है, जिन 11 आइटम्स में इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। सेक्शन 23 को हमने पढ़ा, सेक्शन 23 ने बोला आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। उसके अंदर उसने दो कैटेगरीज में कार्व आउट किया। अगर आप एग्जाम सप्लाई करा रहे हो, 23(a)(1) में कवर हो रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन तो नहीं कराना, लेकिन अगर आपने कोई आरसीएम की सर्विसेज ले ली तो आपको पे करना पड़ेगा। 23(2) बोलता है कि भाई अगर मैंने नोटिफिकेशन इशू करा, तो जब तक उस नोटिफिकेशन की कंडीशन सेटिस्फाइड है तब तक आपको कोई रजिस्ट्रेशन का इशू ही नहीं है। इससे पहले हमने अपना रूल 14(a) पढ़ा था। सर अब थोड़े बहुत इश्यूज हम कर लेते हैं ताकि हमको ये क्लियर हो जाए। सो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन हम ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम या इशू नहीं है। उसके अलावा एक प्रोविजन जो कई बार हम लोग मिस कर देते हैं कि, जस्ट 1 मिनट, आई एम रीडिंग दिस सेकंड, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है उसको रीड कर रहा हूँ। अ पर्सन हैविंग मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी मे बी ग्रांटेड अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच बिजनेस वर्टिकल। तो सर ये पहले तो होता था 31 जनवरी 2019 तक, जहां पे सेपरेट बिजनेस वर्टिकल का कॉन्सेप्ट होता था। 1 फरवरी 2019 के बाद ये चेंज होके आ गया है। नीचे वाला पोर्शन, अ पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेसेस इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी मे बी ग्रांटेड सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट टू कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी एज ऑन डेट अगर आपकी 4 प्लेस ऑफ बिजनेसेस हैं, तो आप चारों प्लेस ऑफ बिजनेस की अलग से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। आपको कोई डिनायल नहीं होगा या कोई बिजनेस वर्टिकल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सर इस वाले प्रोविजंस को ना आप बहुत अच्छे से प्ले भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो प्लेस ऑफ बिजनेसेस है, अगर आप टैक्सेबल सप्लाईज भी दे रहे हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी दे रहे हैं, आप दोनों को सैग्रीगेट कर सकते हैं। टैक्सेबल एक प्लेस ऑफ बिजनेस से, एग्जेम्प्ट एक प्लेस ऑफ बिजनेस से। यानी एक जगह रूल 42 43 नहीं लगेगा, एक जगह पे रूल 42 43 के, वहां तो पूरा ही आपको डिनाई करना है। आईएसडी से क्रेडिट लाए, परसेंटेज में डिवाइड किया, एक जगह पूरा टेस्ट चलाओ, एक जगह पूरा क्रेडिट आपको मिलेगा। चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं अगर आप सिर्फ इस वाले प्रोविजन को यूज करना स्टार्ट कर देते। सो इज देयर एनी स्पेसिफिक कैटेगरी और वी शुड टेक द क्वेरीज रजिस्ट्रेशन में? सी रजिस्ट्रेशन इज अ वेरी बिग टॉपिक, उसको 1 to 1 अभी कर पाएंगे तो वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा।
तो इसीलिए मैंने कॉन्सेप्चुअली वो सारी चीजें टच अपॉन कर दी जो आई थॉट वुड बी मैंडेटरी. इफ एनीवन हैज स्पेसिफिक इशू हम वो टेकअप कर लेते हैं, एंड वी विल आल्सो स्टार्ट दी क्वेरीज जो आपकी पोस्ट हो रखी हैं. क्वेरी से सो स्टार्ट कर Uh, लेते हैं सर, इन बिटवीन और किसी का होगा तो क्वेरी पोस्ट हो जाएंगी चैट बॉक्स से। ठीक है मैम. तो आई थिंक आशा मैम की क्वेरी से हमारी अनरिजॉल्व है अभी हाँ, तक, सो वहां उसके से पहले स्टार्ट के कर लेते ऑल हैं. आंसर है सर। उसके, हाँ, उसके वाली की होती है. सो दिस 2.5 लिमिट इज एज पर जीएसएन और एज पर बैन बेसिस. 2.5 lakh rupees as a supplier when I would be issuing any tax invoice. तो मेरे को ये नहीं देखना मैंने किसको किया. इफ आई एम पासिंग 2.5 लाख रुपीज ऑफ क्रेडिट आईटीसी, चाहे वो मैंने एक को दिया, 10 को दिया या 50 को दिया, द क्यूमुलेटिव फिगर विल बी असर्टेन्ड और मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा. यानी आपका किसी भी स्टेज पे कोई इनवॉइस 2.5 से ऊपर नहीं जाएगा. और जब आप प्रोविजन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें वो ये बोलता है, एज्यूम करते हैं कि दिसंबर में आपकी 2.5 से ऊपर एक्सीड होनी थी, तो बोलेगा आप कोई इनवॉइस नहीं काटेंगे जब तक आपकी फ्रेश आ नहीं जाता. आप ये नहीं करेंगे कि आप बाद में उस दिसंबर में जाके कोई अमेंडमेंट कर दें, उसको इन्फ्लेट कर दें. वो सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा. सिस्टम बोल रहा है जिस दिन आप नॉर्मल रजिस्टर्ड बनेंगे तभी आप वो कर पाएंगे. नेक्स्ट पराग जी की है। Parag ji is asking whether GST number will remain same. Sir, to my understanding GST नंबर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट इज बस कन्वर्टिंग, आपको एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट कर रहा है, तो कोई नंबर चेंज नहीं होगा. Swati ji is asking for a doctor providing consultancy and giving medicines as well. Well, 20 lakh limit will be applicable and there will be need to take registration. मैम, अगर आप दोनों चीजें कर रहे हो तो आपकी मेडिकल सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो गई. जो आपने मेडिकल सप्लाईज करी वो टैक्सेबल है. 20 लाख रुपए के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन ट्रिगर हो जाएगा एंड यू विल हैव टू कंप्लाई विद द लॉ. What if service provider is LIC agent or mutual fund agent? LIC agents and to my understanding even mutual fund agent both are covered in the reverse charge notification. तो अभी हमने एक सेक्शन 23 में नोटिफिकेशन पढ़ी थी, अगर मेरी सारी सप्लाईज पे रेसिपिएंट को पे करना है तो मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना. मेरी सारी सप्लाईज के ऊपर अगर इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी को पे करना है तो मेरे को एग्जेम्पशन वहां से मिल जाएगी. म्यूचुअल फंड आपको एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में, सॉरी, आरसीएम नोटिफिकेशन में चेक करना पड़ेगा. एलआईसी एजेंट तो आई एम वेरी श्योर इंश्योरेंस कंपनी सीधा उसके अंदर कवर्ड है. व्हाट अबाउट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक ब्रेक बास्केट? दीज आर सेक्शन 95 कंपनीज यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर. सेक्शन 24 इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर इनको डे वन पे रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है. सो आई थिंक वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेरीज. अगर किसी और की कोई क्वेरी है तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, अदरवाइज वील एंड दी सेशन. एक्चुअली इतना, इसमें काफी सारी चीजें हैं एंड बहुत राइटली सेट कि सारी चीजें नहीं हो सकती, बट एक बेसिक, जैसा स्टार्टिंग में कहा था, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है आपको कहाँ देखनी है, कौन से सेक्शन देखने हैं, कैसे देखने हैं, तो दैट दैट इज वेरी मच क्लियर नाउ। एक क्वेरी आई है सोनिया इसीलिए गुप्ता आई की। डिसाइडेड कि आरसीएम को जस्टिफाई कर दूं, रजिस्ट्रेशन को मैं उतना ही दूं जितना इस रिक्वायर्ड है. आधे घंटे में जस्टिफाई हो सकता था. नॉट मुझे वेरी अभी. राइट सर। सो एक और क्वेरी आई है सोनिया जी से. रूल 14A, if you have taken registration in this, then how we can cancel it? मैम, आपको कैंसिल नहीं करना. देयर इज अ फॉर्म REG 32 जिसको आप फाइल करेंगे, उसको ट्रांसफर करके आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करने का ऑप्शन अपने टैक्स पेयर को दे सकते हैं. मतलब आपको प्रोसेस फिर से फॉलो करना पड़ेगा. इसीलिए आई एम सेइंग कि 14A अप्लाई करने से पहले सोच लीजिए कि क्या मेरे को अगले 2 महीने में ही तो नहीं ट्रिगर करना पड़ेगा. तो अगर आपने एप्लीकेशन ऑलरेडी 14A में आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, तब आपको ट्रांसफर कराना पड़ेगा स्पेशल रजिस्ट्रेशन टू नॉर्मल रजिस्ट्रेशन. REG Form 32 आपको यूज करना पड़ेगा. आपको रिटर्न तो अपनी फाइल करनी पड़ेगी मिनिमम 3 महीने की, ये प्री कंडीशन है. क्योंकि आपने ये रजिस्ट्रेशन ऑप्ट करी है तो वो कंडीशन के साथ आता है कि मिनिमम 3 महीना आप यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे या एक क्वार्टर आप यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे. I think so. With this, we have answered all the queries. Then देन for फॉर एक और. नॉर्मल वी हैव टू वेट। यस। मैम, या तो आप वेट कर लीजिए या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप दूसरी रजिस्ट्रेशन एक और इनिशिएट कर दीजिए जो रूल 14A की नहीं है, सेम कंपनी की दूसरी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ट्रिगर कर दीजिए, ताकि आपका अभी कंटिन्यूटी भी बनी रहे और आपकी दूसरी रजिस्ट्रेशन भी साइमल्टेनियसली आए. मतलब सेम बट अगेन स्टेट वो आप में डिफरेंट रजिस्ट्रेशन अलाउ करेंगे सेम स्टेट में? सिर्फ 14A
के केस में उन्होंने दिया है कि लेकिन सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अगर सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस आप लेके आएंगे तो आपको एक 14A वाली एक ही मिलेगी। 14A ओके। उन्होंने बोला एक स्टेट में एक ही देंगे। हम्म। नॉर्मल वाली अगर आपके 4 प्लेस है तो आप 4 अलग से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ओके। नॉर्मल मिलेगी। 14A सिर्फ एक ही रिलीफ मिलेगा। ओके। ठीक है। आई ठीक है। थिंक आई ओके। थिंक शुभम जी, 1 मिनट अगर आप म्यूट पे कर सकते हैं तो। I think we've answered all the queries and I think we can close the session with this. Tarun sir, thank you so much. आप टाइम निकाल के आए, आपने इतना डिटेल में सारे टॉपिक्स कवर करे। आशा मैम, एनी क्लोजिंग नोट? क्लोजिंग नोट तो मैं यही कहना चाहूंगी जो भी आपने भी बोला, कि ये सर बहुत ही क्लैरिटी के साथ एज यूजुअल जो आपका सेशन रहता है, तो बहुत अच्छा लगा हमें। एंड सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज सेशन अटेंड किया। एंड इस सीरीज में कल हमारा सेकेंड सेशन है 7 डेज लर्निंग सीरीज में, जिसमें कल का सेशन होगा डॉक्यूमेंटेशन एंड रिटर्न्स पे, कि कौन से रिटर्न्स का फाइल होनी है, क्या है इसके अंदर एंड ऑल। तो डू जॉइन अस टुमारो ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच तरुण जी की टाइम निकाला। एंड एक चैट पे आया है रजनी जी का थैंक्स बोल रहे हैं वो भी, तो थैंक यू सो थैंक मच तरुण जी। एंड थैंक यू अंकिता फॉर moderating today's event. With this we थैंक will यू। be closing. ओके, थैंक यू नोट आ रहे हैं सर आपके लिए तरुण जी। यू एवरीवन। Okay, so with this we will be closing today's session. Thanks to each one of you, and do join us tomorrow. Thank you so much. थैंक यू। Thank थैंक you, यू sir. ऑल, थैंक यू।